آپ ماہانہ یوٹیوب سے ایک رفلی کتنا ارن کر لیتے ہیں؟ نارمل لوگوں کی سیلری ہے وہ جب سٹارٹنگ کرتے ہیں تو 15,000 20,000 ان کے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ 1.5-2 سال گزار لیتے ہیں تو ان کی 25,000 30,000 ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ میں اتنا ارن کر رہا ہوں کہ میں ان کی 3 سے 4 ماہ کی سیلری کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کس نش کا انتخاب کیا جائے، کس ٹاپک پہ ہم کام کریں، کیا کانٹینٹ کریٹ کریں، کیمرہ کہاں سے لائیں گے، کیمرہ کون آپریٹ کرے گا، میں کیمرہ فیس کیسے کروں گا، تو یہ ان چیزوں کے لیے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس ایشو کو آپ نے کیسے ایڈریس کیا اور ہماری آڈینس جو کہ اس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے ان کے لیے ایک راہ ہموار کر دیں ذرا. پاکستان میں نا ایک چیز بہت ہے کہ کوئی چیز چلتی ہے نا، ٹرینڈ میں آتی ہے تو سارا پاکستان وہی دوڑتا ہے اس کی طرف. ایک ٹائم پہ آپ نے سنا ہوگا کہ MBA کر لیں تو بڑی چیز بڑا ہے جی، سارا بھاگے وہ پورے پاکستان نے MBA کر لیے، بعد میں جابس ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح کی یوٹیوب ہے. اب ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ جو چیز میں پرسنلی فیل کرتا ہوں، میں فیلڈ میں نکلتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب علی ہم یوٹیوب چینل کریٹ کریں گے، مائک خریدیں گے 2500 کا اور جا کے کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے، اسٹوری کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو ہم یوٹیوبر بن جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشفاق مشتاق. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو ایک کامیاب پاکستانی نوجوان ہیں جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اپنے کام کو اور ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیا، اور ادھر سے وہ کس طریقے سے اپنے کام کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے کام کو لے کے چل رہے ہیں. یہاں سے دیکھ کے آپ کو ایک موٹیویشن بھی ملے گی اور موٹیویشن کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ٹپس مل جائیں گے، کچھ سیکھنے کو مل جائے گا کہ کیسے آپ اپنے چینل کو گرو کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں انیب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے؟ کرم اللہ کا ٹھیک ٹھاک. انیب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا اور ہماری آڈینس بھی آپ کو جانتی ہے، آپ ایک جانا پہچانا ریناؤنڈ فیس ہیں، تو آپ نے اپنے کام کا آغاز کیسے کیا اور اس میں جو آپ کو چیلنجز فیس کرنا پڑے وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بریفلی بتائیے. اچھا اشفاق بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا، ٹو بی آنیسٹ. جی، جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتا رہتا تھا. میں اسٹوڈنٹ باڈیز میں بھی رہا ہوں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی. اس کے علاوہ میں یونیورسٹی میں ریپ بھی کرتا رہا ہوں، کانسرٹس بھی کرتا رہا ہوں. تو مجھے نہیں پتا تھا میں اس سائڈ پہ آ سکتا ہوں. تو میں نے بیسیکلی سافٹ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا تھا. 6 سیمسٹرز میں نے ویسٹ کیے تھے وہاں پہ اپنے. وہ اس طریقے سے میں نے ویسٹ کیے تھے کہ اسکوپ بہت ہے جی سافٹ انجینئرنگ کا، اور میں سافٹ انجینئرنگ کر رہا تھا لیکن میرا انٹرسٹ نہیں تھا سافٹ انجینئرنگ کے اندر، بالکل زیرو انٹرسٹ تھا. اب ہوتا کیا تھا، کلاس لیتا تھا، کلاس کے بعد میں اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز اس میں نکل جاتا تھا، جو کلب سوسائٹیز کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں نکل جاتا تھا، ڈبیٹنگ سوسائٹیز کی ایکٹیویٹیز تھی اس میں نکل جاتا تھا. تو میں نہیں کر پاتا تھا. تو اس میں جب 6 سیمسٹر تک پہنچا تو مجھے نہ سمجھ آ گئی کہ نہیں یار یہ نہیں مجھ سے ہوگا، میں میس کمیونیکیشن کرنا ہے. میں نے وہ وہیں پہ اسکپ کیا. میں نے BA کی ایک ہی اٹیمپٹ میں 2 سال کلیئر کیے. اس کے بعد میں نے میس کمیونیکیشن ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیا. تو اس کے بعد ابھی 2nd سیمسٹر تھا. تو ایک ٹیچر ہیں ہمارے، نام لینا میں پسند کروں گا کیونکہ ظاہری بات ہے جن لوگوں نے آپ کو پش کیا اور فیلڈ کے اندر ان کا نام لینا چاہیے. سر شاہد، وہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ ملٹی میڈیا ہیڈ ہے. تو وہ ہمیں پڑھانے آئے تو بات کی، انہوں نے اس چینل کا نام لیا. تو اچانک میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا چل یار ٹرائی کرتا ہوں. تو ان کلاس کے کافی بچوں نے ان کو کہا کہ سر ہم بھی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا چینل، ہم بھی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میرے لیے خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے سب کو اگنور کر کے انہوں نے مجھے خود پرسنلی کہا کہ تم آؤ میرے پاس. تو میں ان کے پاس چلا گیا. وہاں جا کر انہوں نے مجھے بتایا کہ کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے اسٹوریز ہوتی ہیں، موٹیویشنل، انسپریشنل، عجیب و غریب قسم کی اسٹوریز ہوتی ہیں، اور آپ آج وہی اسٹوری کا حصہ بھی ہیں. ہاں. اچھا، میں گیا ہوں وہاں پر تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس طرح کی سٹوریز کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. میرے مائنڈ میں اچانک چیز ہے، میں نے کہا یار اس طرح کی چیز تو سال میں ایک بار نکلتی ہے، یہ مجھے کیا بتا رہے ہیں. مجھے بالکل نہیں پتا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کا کہ یہاں پہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے، 1% بھی نہیں پتا تھا. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے سر کل سے میں آ جاؤں گا. تو میں اگلے دن نہیں گیا. ان کی مجھے کال آیا نہیں. میں نے کہا سر وہ میں ادھر بزی تھا، یہ ہے وہ ہے، میں انشاءاللہ نا کل سے جوائن کرتا ہوں. اگلے دن کی مجھے کال آئی. میں نے کہا سر وہ نا میں ادھر بزی تھا، وہ مجھے پڑھا بھی رہے تھے. تو اس کے بعد میں نے ان سے 3-4 دن کی بریک لے لی. میں نے کہا سر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا میں کروں گا کیا یہاں پہ. کچھ بھی نہیں ہے، سال بعد ایک سٹوری نکلے گی اس طرح کی کہ کیا کروں گا، مجھے سمجھ نہیں تھی بیسیکلی. تو اور اب آپ ڈیلی کانٹینٹ نکال رہے ہیں. اب ہوا اس طریقے سے کہ 4 دن گزرے ہیں تو مجھے کال آ گئی. تو میں ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا یونیورسٹی کے ساتھ. مجھے کال آ گئی
किधर हो? मैंने कहा सर ऑफिस हूँ। मेरी तकरीबन 15 मिनट बिस्ती हुई है टका के। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुमने मीडिया में आना है, मीडिया में ऐसे नहीं है काम, मीडिया में ऐसे नहीं होता, कमिटमेंट करके आप पीछे हट जाओ। तो मुझे बताओ तुमने आना है कि नहीं आना? सिर्फ मुझे मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार सर मुझे पढ़ा रहे हैं, अगर मैं मना करूँगा नहीं आएंगे सर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, तो आगे असाइनमेंट्स हैं, आगे फाइनल्स आने हैं, तो मेरे नंबर शंबर नहीं लगने। मैंने कहा सर मैं आऊँगा, सिर्फ उन नंबरों की वजह से कि मेरे नंबर लग जाए, सर मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं चला गया। मैंने वहाँ पे 4 दिन 5 दिन 6 दिन काम किया तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट फील हुआ। उसके बाद ऐसा चढ़ा हूँ मैं इस गाड़ी के ऊपर कि फिर मैंने अपना चैनल भी बनाया, तय करते जा फिर मैंने अपना चैनल भी बनाया, तो उस पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी हैं। फेसबुक पे मेरे 3,72,000 फॉलोअर्स हैं। तो इसी तरीके से चलता चलता अब वही जो कंटेंट में कभी सोचा करता था कि यार ये तो साल में निकलेगा, अब वही कंटेंट मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, वही कंटेंट और वही चीज़ मेरी पहचान है। और मैं समझता हूँ कि उस दिन वो जो सर शाहिद थे मुझे वो डांटते ना 15 मिनट, आज आप इस स्टेज पे मैं ना कर सकता। तो आपने जो सवाल किया है कि किस तरह इस फील्ड में आए, तो मैं समझता हूँ कि मुझे वो जो डांट थी वो इस फील्ड के अंदर लेकर आई है। अच्छा, बहुत सारे जो है ना लोग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, जैसे कि कुछ मसाइल तो जेन्युइन होते भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हमने खुद साख्ता होते हैं जो हमने क्रिएट किए होते हैं अपने माइंड में। लाइक किस निश का इंतखाब किया जाए, किस टॉपिक पे हम काम करें, क्या कंटेंट क्रिएट करें, कैमरा कहाँ से लाएंगे, कैमरा कौन ऑपरेट करेगा, मैं कैमरा फेस कैसे करूँगा। तो ये इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि इस इशू को आपने कैसे एड्रेस किया और हमारी ऑडियंस जो कि इसको स्टार्ट करना चाह रही है उनके लिए एक राह हम बात करते हैं ज़रा। पाकिस्तान में ना एक चीज़ बहुत है कि कोई चीज़ चलती है ना, ट्रेंड में आती है, तो सारा पाकिस्तान वही दौड़ता है उसकी तरफ। एक टाइम पे आपने सुना होगा कि MBA कर लें तो बड़ी अच्छी बड़ा है जी, सारा भागे वो पूरे पाकिस्तान ने MBA कर लिया, बाद में जॉब्स खत्म हो गई। ठीक है, इसी तरह की यूट्यूब है। अब होता बेसिकली ये है कि जो चीज़ मैं पर्सनली फील करता हूँ, मैं फील्ड में निकलता हूँ, लोगों को देखता हूँ कि लोग क्या समझते हैं कि जनाब अली हम यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे, माइक खरीदेंगे 2500 का और जाके काम करना स्टार्ट कर देंगे, स्टोरी करना स्टार्ट कर देंगे तो हम यूट्यूबर बन जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, आप ये सोचें कि आपने यूट्यूबर बनना है या आपने जर्नलिस्ट बनना है। ठीक है, हम जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मुझे चीज़ नज़र आती है ना, सबसे जो चीज़ नज़र आती है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। पहली बात तो एजुकेशन नहीं होती उनकी। ठीक है, अगर आप एजुकेशन लेकर आते हैं तो मेरा ख्याल जहां आपने 10 दिन में प्रोग्रेस करनी है आप 2 दिन में प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि आप किसी ना किसी अदारे के अंदर 1 साल 5 माह 6 माह काम करके आए, आपकी बड़ी पॉलिश हो जाती है स्किल्स। ठीक है, स्किल्स पॉलिश हो जाती हैं। जब ऐसे करके निकलते हैं आपको पता चलता है कि जनाब अली आपने किसी के साथ बात करनी है, किस तरीके से करनी है, किस तरीके से काम करना है, आपको किन किन चीज़ों को देखना है। अब होता क्या है, जो मुझे ये चीज़ नज़र आई है, अदारे में काम करना ज़्यादा अहम है बजाय इसके एजुकेशन के। अब होता क्या है, मैंने जो चीज़ नोट की है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, अभी उनका 4था या 5वां सेमेस्टर चल रहा होता है, वो सोचते हैं कि जनाब अली हम यूट्यूब चैनल साथ स्टार्ट कर लेते हैं। अब वो होता क्या है कि वो नहीं कर पाते, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, उनको ये नहीं पता कि यार हमने माइक पकड़ के जाना कहाँ पे है, उनको ये नहीं पता हमें स्टोरीज निकालनी कैसे है। वो इस चक्कर में क्या होता है, वो 4 से 5 माह लगातार वो कंटेंट बनाते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। 4 से 5 माह बाद वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद वो क्या करते हैं, जाके जॉब करते हैं 20-25 हज़ार पे, डिसहार्ट हो जाते हैं और ये कहते हैं कि यार ये काम है ही फ्रॉड। बिल्कुल ऐसा। बेहतर ये है कि आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें या एजुकेशन के दौरान ज़्यादा प्रायोरिटी रखें इस चीज़ को। आप कोई भी अदारा ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इंटर्नशिप करें, 4 माह 5 माह 6 माह वहाँ पे काम करें, आपको पता चल जाए 6 माह अपने ज़ाया करके आपने 25,000 जॉब करनी है, वही आप 6 माह इंटर्नशिप करें फ्री में, उसके बाद आप आ जाएँ यूट्यूब के ऊपर काम करें। ये फार्मूला जो आप बता रहे हैं ये एप्लीकेबल है उन ख़वातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए और उन लड़कों के लिए जो इंडोर अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि किचन के आइटम्स हैं, कुकिंग चैनल है, क्या ये रूल उधर भी अप्लाई होता है? सर डिफरेंट है क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ बताई है मैंने अपने कंटेंट के हवाले से बताई है। ठीक है, अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हैं तो उस पर एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, क्यों? व्लॉगर का ये होता है कि आप व्लॉग्स बना रहे हैं, लोग आपके साथ अटैच हो गए, लोग आपको देखना चाह रहे हैं, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है लोग नहीं देखेंगे। आप सिंगर हैं, वो भी यूट्यूबर है,
ایک सिंगर है वो यूट्यूब के ऊपर अपने सॉन्ग्स अपलोड कर रहा है तो वो भी यूट्यूबर है, एक कुकिंग के चैनल बनाया है किसी खतून ने तो वो भी यूट्यूबर है। लेकिन जो कंटेंट जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिस कंटेंट की व्यूवरशिप ज़्यादा है, जिस कंटेंट की अर्निंग ज़्यादा है, जो कंटेंट मैं खुद कर रहा हूँ, जो कंटेंट ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, मैंने आपको उस हवाले से बात की। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें देखी जाती है, इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि लोग समझते हैं कि यार हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, साथ हम अपनी जॉब करते हैं, ये हमारा साइड बिजनेस चलता है और इससे हम ग्रो कर जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपने यूट्यूब पे आना है, आप सोच कर आए कि भाई फुल टाइम जॉब है, आपने 5 माह 6 माह इसके ऊपर लगाने हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसको प्रॉपर लेकर चलना है। मैं गया, आमिर लियाकत वफात पा चुके हैं, उनकी वाइफ, थर्ड वाली वाइफ थी दानिया शाह, उनका इंटरव्यू करने गया लोधरा। तो वहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो एक बंदा आता है इंटरव्यू करने के लिए, यूट्यूबर था। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि किस किस तरह के यूट्यूबर आए हुए हैं। वो बंदा आया तो कहता कि सर मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो आपकी वीडियोस देखते हैं हम। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ज़बरदस्त। मैंने कहा आप कब से काम कर रहे हैं? लोधरा में ही काम कर रहे हैं। जी हम लोधरा में काम कर रहे हैं। कहता सर मैं ना मॉर्निंग में प्लम्बर हूँ। अच्छा मॉर्निंग में प्लम्बर हूँ और शाम को फिर मैं ये काम करूँ। शाम को यूट्यूबर। सर मैं चुप करके बैठ गया। मैंने कहा वो प्लम्बर हो गया काम कर रहा है और मैंने MS किया हुआ है मैस कम्युनिकेशन में तो मैं भी ये काम कर रहा हूँ, तो हम दोनों बराबर आ गए। तो बात ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, जब तक कोई चीज़ सीखेंगे नहीं आप नहीं करेंगे। तो पहले सीखें, उसके बाद आप यूट्यूब पर। अच्छा, जिस कंटेंट को आप क्रिएट करके पब्लिश कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें स्टोरीज भी आप कवर कर रहे हैं, इन स्टोरीज़ को कवर करते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? सर मुश्किलात का सामना मैं बड़ा एक सिर्फ किस्सा बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक केस हुआ, दिखने में ऐसा लगता है कि अनीब गए हैं, बात की है, स्टार्ट की है, 8-10 मिनट बात की और अपना कंटेंट पब्लिश कर दिया, डेट से। लेकिन बिहाइंड द सीन और सीन को क्रिएट करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं और जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसको ज़रा हाईलाइट करना चाहिए। मैं बताता हूँ। एक मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बताता हूँ। मुगलपुरा में एक केस हुआ जिसके अंदर जनाब अली एक घर के अंदर फायरिंग होती है। फायरिंग के नतीजे में जो बेटी होती है उस घर की, उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी 1 हफ़्ता बाद शादी थी। अब ये बड़ी एक इमोशनल सी स्टोरी है कि 1 हफ्ते बाद लड़की की शादी थी और गेट पे फायरिंग होती है, डेथ हो जाती है। अब ये हमारी नज़र में एक क्राइम स्टोरी थी और हम करने चले गए। जब वहाँ जाकर खड़े हुए हैं तो हमने पूछा कि जिन्होंने ये कत्ल किया है वो कहाँ पे रहते हैं? उन्होंने कहा सर ये सामने वाली रो में 3 घर छोड़ के उनका घर है। हमें क्या खुद को बलि का बकरा बना के पेश करने जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जो इतने लोग हैं कि जो फायरिंग करते हुए सोचते नहीं हैं, जो जिनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी, हम उनके पास जो दंदनाते फिर रहे हैं, जिनके पास हर किस्म का असला मौजूद है, वो उनका 3 घर छोड़ के है। ठीक है, तो हम जब वो कैमरे शैमरे ले गए तो जारी बात है, अब हमारे माइंड में ये चीज़ थी, मैंने सोच लिया, मैंने कहा मेरे साथ मेरा दोस्त था, मैंने कहा भाई, मैंने कहा इंटरव्यू कर और निकलने वाली बात कर और सोच ले कि अगर उनमें से कोई आए ना तो फिर नहीं भागना। तो मैंने कहा फिर जो होता है वो देखी जाएगी। मैंने कहा खड़े होना है, तो मैंने कहा इंसल्ट होनी है वरना। अच्छा, हमारे माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं। उसके अलावा हम जनाब अली, जारी बात है अब तो अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें बेहतर कर दी हैं। पहले बजट भी नहीं होता था, चीज़ें भी नहीं होती थी, तो पेट्रोल भी ज़रा सोच समझ के चलाना पड़ता था। लाहौर से सियालकोट तक एक स्टोरी कवर करने गए थे और बाइक पर गए थे, सर्दियों के दिन थे, और वहाँ से जब वापस आए हैं हम दोबारा लाहौर, तो उस वक्त धुंध थी डस्का रोड के ऊपर। ठीक है, गुजरांवाला से क्रॉस करके आना था, डस्का रोड के ऊपर धुंध थी और विजिबिलिटी 0 थी और जो बॉडी के ऊपर पूरा गीला हुआ पड़ा था धुंध की वजह से, और उस वक्त रात के कोई 11 बज गए थे। तो हम सियालकोट से लाहौर वापस आए थे। ये आपने मेहनत की है और मैं अपने जो भी जूनियर्स होते हैं, जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि आप मेहनत करें और मेहनत करते चले जाएं, उसका रिवार्ड तो अल्लाह ताला ने आपको देना ही देना है। ठीक है, अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को भी अपना काम समझ के करेंगे। अगर इदारा आपके साथ ताउन करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो अल्लाह ताला ने तो उसका वादा किया हुआ है, तो उसकी आपको रिवार्ड ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, अब हम एक उस क्वेश्चन की तरफ आना चाहते हैं जो कि बड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस के कहते हैं कि खातून से उसकी उम्र और मर्द से उसकी तनख्वाह इनकम उसकी ना पूछी जाए। फिर भी हम आपसे जसारत करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आप माहाना यूट्यूब से एक रफली कितना अर्न कर लेते हैं? मैं आपको इसको ना बताता हूँ कि हमारे सीनियर भी हैं, दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हम उनको कहते हैं, शहजाद मिर्ज़ा साहब। जी जी बिल्कुल। मैं उनके पास कुछ दिन पहले बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझसे ना क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे कहते कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो रही है? मैंने कहा हो रही है।
जो चाहो पहन सकते हो, मैंने कहा पहन सकता हूँ, जो चाहो खरीद सकते हो, मैंने कहा खरीद सकता हूँ, जो चाहो खा सकते हो, मैंने कहा खा सकता हूँ, सब कुछ पूरा हो रहा है, मैंने कहा सब कुछ पूरा हो रहा है, उसमें सेटिस्फाई हो जाओ, उसमें सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, ये तो आपको मिल गया होगा। दूसरा, आजकल जो नॉर्मल लोगों की सैलरी है वो जब स्टार्टिंग करते हैं तो 15,000 20,000 उनके स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाद जब वो 1.5-2 साल गुजार लेते हैं तो उनकी 25,000 30,000 हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अर्न कर रहा हूँ कि मैं उनकी 3 से 4 माह की सैलरी को गदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं मिला कि जाके यूट्यूब पे एक इंटरव्यू कर लिया, इसके पीछे 4 से 5 माह की स्ट्रगल है, और उस 4 से 5 माह के अंदर मैंने 1 रुपया भी अर्न नहीं किया, 1 रुपया भी अर्न नहीं किया, और पॉकेट से पेट्रोल भी लगाया है, मेहनत भी की है, 1000 बार सोचा छोड़ देने का, फिर भी किया है, तो ये सारी अंदर चीज़ें मौजूद थी। सही। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा अनीब से हमने वो गुफ्तगू की, उनके जो चैलेंजेस हैं, उन्होंने काम कैसे स्टार्ट किया और आप इससे कैसे मोटिवेशन हासिल करके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है एजुकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप एजुकेशन आपके पास नहीं भी है तो भी आप इस काम को स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी तरीके से इस तरीके से मैनेज करें कि वो आपके कंटेंट का मास्टर जो शाहकार है ना वो उसमें नज़र आए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।